Today's webinar is hosted by Agarwal Samaj Hyderguda Shakha and it is organized by Progressive Business Network (PBN). आज के वेबिनार के दो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वन बिजनेस नेटवर्किंग, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज के वेबिनार का। बिजनेस नेटवर्किंग अ टूल टू ग्रो योर बिजनेस, जिस पे डेलिब्रेट करेंगे प्रशांत अग्रवाल। और सेकंड टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग, जिस पे एड्रेस करेंगी मिस अंकिता गुप्ता। वेल फ्रेंड्स, as you all know that during the last 2 months, when the entire country was locked down, our team at PBN worked really hard and we have come out of our comfort zones, and the idea of PBN was given a formal shape. Last 2 months, I would like to thank my steering committee who have taken out their time and given this a formal shape, and we are today having a webinar in front of all of us. Before we give a welcome address and Manoj ji takes forward this, I'd like to introduce to you the concept of PBN. I'm sure Manoj ji will explain to you in greater detail and clarity. वो आपको और ज़्यादा डिटेल में PBN का समझाएंगे. I'd like just to take 1 minute to take you through what is this concept of PBN. Friends, Progressive Business Network has been started with the aim of bringing together entrepreneurs and professionals. So we want to bring the business community and the professional community in order to energize their business by connecting them. हम फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है कि हम समस्त अग्रबंधुओं को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ें और उनको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कनेक्ट करें, so that they can increase their networking and they can connect and exchange business. जब हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, मनोज जी हमेशा एक बात हम सभी को कहा करते थे. आई थिंक आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू. If you all see on our Telegram group, we have about 400 members as of now. Manoj ji always tells us that this 400 people are your marketing managers. They are freely working for you without any salary. So basically, this is the whole concept on which we are working on PBN. We want to make sure that all the members who are there on this platform are basically marketing for each other. Friends, PBN, in PBN, I can actually identify 4 visions which with which we are moving. First one is vision of profit. Second is vision of society, and third is a vision of humanity. इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो when you bring all this together, we get the 4th vision, which is the vision of life, which is what we have envisaged through this whole concept of Progressive Business Network. So our intent today is to learn from 2 learned speakers who are with us, and on learning, I'd like to quote a shlok from our Vedas. I'll read. It says, उत्थिष्टा जाग्रता प्राप्या वरन निबोधता कृष्य धरा निशिता दुरात्य दुर्गम पश्चात. Meaning, awake, arise and learn by approaching the excellent ones. The path to success is difficult and risky. So I think friends, हम लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं ताकि हम भी जो इस श्लोक में कहा गया है उसको फुलफिल करें. हम लोग एक्सपर्ट से सीखने की कोशिश करेंगे आज. They can enlighten us on their experiences and how we can use it to grow our business. So I would like to welcome now CA Manoj Kumar Agarwal to address all the participants with his welcome speech. Before I invite him, I'd like to give a small introduction. I don't think CA Manoj Kumar Agarwal among us needs an introduction. We are all he's well known among all of us, but still I think as a formality, I still would want to make everybody of us know about him. So friends, CA Manoj Kumar Agarwal, he's a practicing chartered accountant. He's partner at MKA and Associates, and जैसे आप सब जानते हैं, he's the president of under which we are doing this excellent initiative.
Manoj Kumar Agarwal is an accomplished practitioner in the field of income tax and GST, audit, financial planning and project planning. He has got almost 28 years of wonderful experience serving his clients. He started his practice in the year 1992 and has expanded to several locations like Vizag, Adilabad and Nizamabad as well. He is an active social worker, he is a philanthropist and visionary. He comes from humble background and understands the discipline and resolve to achieve financial stability. Friends, I think it would be our pleasure to listen to him, his vision about PBN and how we can take this forward. So, Manoj sir, you're welcome. Kindly address our audience today. धन्यवाद आलोक जी, आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया। मैं उतना ज्यादा डिजर्व नहीं करता हूँ। सभी को आज की इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं मनोज कुमार अग्रवाल, अग्रवाल समाज हैदरगुड़ा शाखा और पीबीएन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आलोक जी ने बताया, आज की मीटिंग का थीम है बिजनेस नेटवर्किंग, ए टूल टू ग्रो योर बिजनेस। इस विषय पर हमारे दो साथी प्रशांत अग्रवाल जी और अंकिता गुप्ता कुछ समय बाद अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारी कमेटी ने आज मुझे आप सभी को पीबीएन की गतिविधियों से अवगत कराने का कार्यभार सौंपा है। Zoom पे ये अपना इससे रिलेटेड कर रहा है। सभी लोगों को एक बार म्यूट कर दिया जाए प्लीज, कुछ डिस्टर्बिंग वॉइसेस आ रही है। डन प्लीज गो अहेड सर। प्रोग्रेसिव का अर्थ होता है प्रगतिशील। जैसे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हो, प्रोग्रेसिव बिजनेस नेटवर्किंग, पीबीएन। प्रोग्रेसिव वर्ड शब्द का अर्थ होता है प्रगतिशील। पीबीएन भी एक प्रगतिशील, महत्वाकांक्षी और तरक्की पसंद लोगों का एक समूह है। इस समूह का हर सदस्य अपने परिवार में उन्नति तो चाहता ही है और साथ में समाज के हर व्यक्ति के प्रति, समाज के हर व्यक्ति के व्यापार के में प्रगति और विकास की कामना भी रखता है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम चाहते हैं कि अग्रवाल समाज का हर व्यक्ति, हर व्यापारी, हर प्रोफेशनल अब एक प्रोग्रेसिव थॉट रखे और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करे। क्योंकि जो चीज प्रोग्रेस नहीं करती है, जो उसमें शिथिलता आ जाती है, तो वो जो ऐसे ठहरे हुए पानी की तरह उसमें पानी दूषित हो जाता है। वैसे बिजनेस में भी निरंतर प्रगति होना जरूरी है। तो अपना आउटलुक और अपना एटीट्यूड प्रोग्रेसिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। पीबीएन की स्थापना अग्रवाल समाज की हैदरगुड़ा शाखा द्वारा 14 जून 2018 को हुई थी। अभी तक इसकी गतिविधि शाखा के सदस्यों तक की सीमित थी। अभी ये शाखा, हैदरगुड़ा शाखा के सदस्य ही इसकी सेवाओं का लाभ ले पा रहे थे। पिछले 2 वर्षों से पीबीएन ने अग्रवाल समाज हैदरगुड़ा शाखा के कई सदस्यों को काफी बिजनेस में इसमें लाभ दिलाया। काफी लोगों को इससे बिजनेस का फायदा हुआ और इसी सफलता को हमने ध्यान रखते हुए और इसी से प्रेरित होते हुए हमने योजना बनाई कि क्यों ना ये इसका और विस्तार करें और आज हम इसको इस तरीके से लेके जाए कि विश्व में कहीं पे भी अग्रवाल बंधु जो हमें इस संस्था से जुड़ना चाहता है वो जुड़ पाए। हमारा विजन अब
काफी ग्लोबल हो गया है और हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। बिजनेस नेटवर्किंग का एक मूल सिद्धांत है कि जितने लोग नेटवर्किंग में रहेंगे, जितने ज्यादा लोग रहेंगे, उतना ज्यादा का बिजनेस होगा और आपके ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप कोई ब्रांड से मैन्युफैक्चरिंग करते हो या ट्रेडिंग करते हो तो उसकी ब्रांडिंग में आपको हेल्प मिलेगी। ब्रांडिंग के लिए नेटवर्किंग, बिजनेस नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा साधन है। इस आपका बिजनेस ब्रांडिंग करने के लिए बहुत उपयोगी जरिया है ये। चलिए मैं अभी आपको बताता हूं कि पीबीएन किस तरीके से अभी कार्य कर रहा है और आगे इसके क्या प्लान है। पीबीएन अभी जो है हम मेंबर्स को वेबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग, टेलीग्राम ऐप द्वारा व्यापार के आदान प्रदान का अवसर देता है। प्रेजेंटली टेलीग्राम ऐप से हम पीबीएन के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन का एक जरिया बना रखे हैं। हमने टेलीग्राम ऐप इसलिए चुना कि इस टेलीग्राम ऐप एक ही ग्रुप में, टेलीग्राम के एक ही ग्रुप में 2 लाख सदस्य एक साथ जुड़ सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में वो 256 मेंबर्स तक ही सीमित रह जाता है। तो टेलीग्राम ऐप ने हमें ग्लोबल जाने की एक अच्छी सुविधा दी है। पीबीएन की वेबसाइट भविष्य में सदस्यों को बिजनेस कैटेगरी वाइज डाटा भी उपलब्ध कराएगी। अभी टेलीग्राम ग्रुप से हमें बिजनेस कैटेगरी वाइज डाटा अवेलेबल नहीं है, जैसे कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है या कितने ज्वेलर्स है, कौन कौन ज्वेलरी फील्ड में है। अभी डाटा थोड़ा रेडी हो रहा है। हमारी वेबसाइट आने तक ये डाटा भी आपके समक्ष आ जाएगा। इस डाटा का उपयोग करते हुए, वेबसाइट का उपयोग करते हुए आप लोग, जैसे किसी को अच्छे ज्वेलर्स का चॉइस चाहिए, आप ज्वेलरी खरीदना है अपने बिटिया की शादी के लिए, तो आप हमारे ग्रुप में देख सकती है कि कौन कौन से ज्वेलर्स है, कौन कौन से ज्वेलर्स इस पे इम्पैनल्ड है और वो किस तरीके की ज्वेलरी उनका वहां पे शोकेस कर रहे हैं। इस तरीके से हम अग्रवालों के बीच में जो भी बिजनेस होता है वो हम उनको फर्स्ट पहल देके, उनको फर्स्ट इंपॉर्टेंस देके उनसे बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसमें व्यापार जगत में एक बहुत मंदी आ गई है और अपने बिजनेस में काफी उथल पुथल हो चुकी है। और इस लॉकडाउन के बाद बिजनेस करना किसी युद्ध से कम नहीं होगा। एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क हमारे आगे है। लॉकडाउन के बाद बिजनेस करना बिजनेस में काफी चुनौतियां आएंगी। हर युद्ध को जीतने के लिए युद्ध लड़ने वाले को उसको अच्छे अस्त्र शस्त्रों की जरूरत होती है और ये आधुनिक युग है तो हमें आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पीबीएन भी आपके अस्त्रों के तुनीर में एक प्रमुख बाण हो सकता है। नेटवर्किंग की सहायता से अगर आप बिजनेस करोगे तो आपके बिजनेस को आप काफी सहजता से एक्सपैंड कर पाओगे और आपको आपके पीबीएन के 500 तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। 500 मार्केटिंग मैनेजर्स आपका मार्केटिंग भी करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हर अग्रवाल भाई बहन को पीबीएन से जोड़े और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से उनके व्यापार को प्रोटेक्शन दे।
अब मैं आपको बताऊंगा कि पीवीएन किस तरीके से अभी कार्य कर रहा है। इसके पीवीएन के पीछे जो एक स्टीयरिंग कमेटी है, उसके सदस्य किस तरीके से अब इस लॉकडाउन के पीरियड में भी काफी मेहनत से इसका काम कर रहे हैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं कि हमारे पीवीएन के सभी सदस्य बहुत ही जुझारू और बहुत ही निष्ठापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाने में मेरा बहुत ज्यादा सहयोग दे रहे हैं। प्रेजेंटली पीवीएन स्टीयरिंग कमेटी में 15 सदस्य हैं। हर सदस्य हाईली क्वालिफाइड और अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं। कमेटी के सदस्य पीवीएन की भावी योजनाओं पर निरंतर कार्यरत है। मैं समिति के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पीवीएन के विस्तार में अपना योगदान दिया। मैं आप सबका उनसे परिचय भी अभी कराना चाहूंगा। आलोक जी, हमारे सब में प्रमुख सदस्य है पीवीएन स्टीयरिंग के महेश कानोड़िया जी। महेश कानोड़िया जी हमारे हैदरगुड़ा शाखा की बैकबोन है। वो होल एंड सोल भी है और इनके साथ 80 वर्षों का अनुभव जुड़ा हुआ है। 80 वर्षों का इसलिए कर रहा हूं, उनकी उम्र पे मत जाइए। वो 16 घंटे काम करते हैं, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, तो उनकी 40 साल का अनुभव 80 साल के अनुभव के बराबर है। नेक्स्ट प्लीज। आलोक के बारे में जितना बताया जाए कम है। आलोक एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनकी फर्म का नाम है आलोक एंड अनिरुद्ध। आलोक बहुत से प्लेटफॉर्मों पर जीएसटी के बारे में वेबिनार्स को एड्रेस कर चुके हैं। इनके हजारों स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस पे सिटी के और बहुत दूसरे शहरों में फैले हुए हैं। और आलोक ने कई बुक्स पे का ऑथर भी किया है और एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर है और हमारे शाखा के ट्रेजरर भी है, हैदरगुड़ा शाखा के ट्रेजरर भी है। निरंजन पित्ती जी बीएससी और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए है। वो अभी टीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं। निरंजन पित्ती जी ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को ई सेवा का जो प्रोजेक्ट था उसको स्टार्ट करने में इनका की रोल था। वो उसके सूत्रधार थे। ई सेवा जो हम आज सेवा लेते हैं उसके सूत्रधार निरंजन पित्ती जी है। डॉक्टर नेहा अग्रवाल पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कर चुकी है। इनकी फर्म गार्गी नॉलेज सॉल्यूशंस स्टूडेंट्स को कैरियर असेसमेंट, कैरियर सिलेक्शन में मदद करती है और ये बहुत ही एनर्जेटिक, एजाइल और इंटरप्राइजिंग है और हमारे पीवीएन के पूरे कार्यक्रमों में बहुत ही उत्साहपूर्वक बहुत हमें सहयोग देकर इनकी बहुत इस पीवीएन को आगे बढ़ाने में बहुत प्रमुख भूमिका रही। डॉक्टर स्वाति अग्रवाल ये नेहा जी की छोटी बहन है। शी इज ऑल्सो पीएचडी इन साइकोलॉजी। स्वाति भी गार्गी नॉलेज सॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। शी इज वेरी गुड, शी हैज अ वेरी गुड मैनेजरियल स्किल्स एंड एक एकेडमिशियन है और कई कॉलेजेस में वो फैकल्टी के रूप में भी काम करती है। रीना अग्रवाल, she is BCom and she has done masters in multimedia business communications। रीना जो है हमारे हैदरगुड़ा शाखा के हर काम में बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और हमारे जो भी फ्लायर, ब्रोशर्स और जितना भी आर्ट वर्क होता है वो उसका काम हम रीना अग्रवाल को सौंपते हैं। शी इज ए होममेकर, मल्टीटास्कर and spirited woman entrepreneur।
अंकिता गुप्ता जी BBA MBA मार्केटिंग ऑपरेशंस है। इनका आज एक पेपर है, आज एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हम इनका डिटेल परिचय उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले देंगे। पवन कुमार अग्रवाल जी BA B.Ed है। ये अभी तक हिंदी के टीचर थे और अब उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन से थोड़ा सा संन्यास लेकर एक काशवी फोटोग्राफी का के रूप में इन्होंने अपना ब्रांड बहुत ही बिजनेस नेटवर्किंग के थ्रू बहुत ही अच्छा इसको फैलाया है। और आज इनका काशवी फोटोग्राफी और काशवी क्रिएशंस आज एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। रितेश अग्रवाल जी हमारे टेक्निकल टीम के हेड है। ये हमारे वेबसाइट पे बहुत ही वेबसाइट बनाने में और उसे लॉन्च करने में, उसको कॉन्सेप्चुलाइज करने में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। और ये अभी HSBC से जुड़े हैं एंड ही इज BTech एंड MBA। प्रशांत अग्रवाल जी MBA इंटरनेशनल बिजनेस और एक जेमोलॉजिस्ट भी है और जेमोलॉजिस्ट ट्रेनर भी है। प्रशांत जी का भी आगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और उनका डिटेल परिचय हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के पहले देंगे। सोमेश बंसल जी एक बहुत ही युवा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं स्टीयरिंग कमेटी में। ये एक MBA है और विशाल हैंडलूम्स नाम की एक संस्था के वो से जुड़े हैं और ही इज ए वेरी गुड पब्लिक स्पीकर और एक यंग एंटरप्रेन्योर और एक कंपायरर, बहुत अच्छे कंपायरर है। उदय गुप्ता जी भी एक MBA है और फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ अग्रवाल समाज कोमपल्ली, इज एक्टिव सोशल वर्कर, शाखा चेयरमैन ऑफ हैदराबाद किंग्स राउंड टेबल ट्रस्ट, मेंबर ऑफ लॉयंस, JCI, BNI, रोटरी एक्सेट्रा। उदय गुप्ता जी का बहुत बहुत हमारे ग्रुप में स्वागत है। PVN को और संस्था से अलग इसकी स्टीयरिंग कमेटी की वजह से इस रख सकते हैं। अब मैं आगे के प्रोग्राम के लिए आलोक को वापस इनवाइट करूंगा। आलोक इस कार्यवाही को आगे बढ़ाए। धन्यवाद मनोज जी, हम सभी को PBN के बारे में बताने के लिए और हमारे पार्टिसिपेंट्स को PBN का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एक भगवत गीता में एक श्लोक है जो आई थिंक काफी के लिए, चक्रम एकम न वर्तते। इसका मतलब है एक चक्र को आप बिना प्रयास के नहीं घुमा सकते। A wheel cannot be turned alone. So I think जो आपने स्टीयरिंग कमेटी का इंट्रोडक्शन दिया और उनके काम के बारे में बताया, I think this is the apt introduction and their work for creating PBN is the entire effort has gone into making of the PBN, and I'm really thankful to the entire team. So let's move ahead. Friends, we'll call upon our first speaker for today, Mr. Prashant Agarwal, and his topic is business networking, a tool to grow your business. I think many of our participants would be able to make great help out of this presentation. Friends, प्रशांत जी BNI से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में आई थिंक उन्होंने काफी उनका रोल है, काफी नेटवर्किंग के बारे में इनको नॉलेज है, तो हम उनसे आज जानेंगे। मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ पहले। Prashant is a MBA graduate in international business. He is a gemologist and he has gold jewelry manufacturing experience. और इन्होंने एक जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनर भी हैं. His training upcoming gemologists.
करंटली ये फैशन और इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, इनका बिजनेस नेम या फर्म नेम है मोतीलाल ज्वेलर्स। Business networking, staying positive or adapting changes are his strengths. So, friends, let us all welcome Prashant today for his deliberation on business networking. Prashant. थैंक यू सो मच आलोक जी, आप सभी का स्वागत है। मैं अपनी नॉलेज से थोड़ा सा आपको लाइट देना चाहूँगा कि बिजनेस नेटवर्किंग किस तरह से किया जाना चाहिए इस मॉडर्न ज़माने के अंदर। आप कैन यू प्लीज रन द प्रेजेंटेशन? यस, तो बिजनेस नेटवर्किंग एक जरिया बिजनेस ग्रो करने का। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो पुराने तरीके होते थे कि पुराने जमाने में जब इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, इतने फैसिलिटीज नहीं थे, तो लायन क्लब, रोटरी क्लब, सोसाइटी मीटिंग्स, फैमिली फंक्शंस, इस तरीके से लोग नेटवर्किंग करते थे। बट वो एक्चुअली बिजनेस नेटवर्किंग नहीं था, वो सिर्फ लोगों से जुड़ने का एक तरीका था, प्रॉपर नेटवर्किंग के जरिए नहीं थे। बट आज के ज़माने में नेटवर्किंग बहुत तरीके से बदल गई है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो चुकी है, जैसे JCI हो गया, BNI हो गया, जीतो हो गया। ये सब लोग अपनी तरह से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप किए हुए हैं और उससे सभी सदस्यों को बहुत अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। PBN भी एक अग्रवाल समाज के लिए, अपने अग्र बंधुओं के लिए एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेटवर्क, आज के जमाने की मांग है नेटवर्क अप, यानी कि अपने आप को नेटवर्किंग के लिए रेडी करिए। ये चीज कभी स्कूल्स कॉलेजेस में सिखाई नहीं गई है। इसका ये चीज जब तक आप मार्केट में नहीं आओगे, जब तक 10 लोगों से मिलेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते आए हैं ये है कि लोग जैसे ही मिलते हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बेचने की कोशिश करते हैं, ना कि रिलेशनशिप बिल्डिंग में ध्यान देते हैं। वो सबसे बड़ी एक मिस्टेक है जो पूरा ट्रेडिशनली होती आ रही है, उसको बदलना होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसका एक ये जरिया है कि जहाँ पर सक्सेसफुल लोग, यानी कि जिन लोगों ने कुछ हासिल किया हुआ है अपने बिजनेस में, प्रोफेशन में, ऐसे लोग जहाँ पर जाते आते हैं उस ऐसी जगहों पर आए जाएं। सब लोग को अलग अलग रास्ते मिलते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सब चीजें थी। बट अब PBN, BNI जैसे बड़े आपको अपॉर्चुनिटीज है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि काफी जो सक्सेसफुल प्लेयर्स है मार्केट के अंदर, वो लोग यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पॉजिटिव होते हुए लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनसे सीख लें, ना कि इनसे जलें। मेरा बोलना है बहुत गलत होगा, बट इस तरीके से अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है आज के जमाने के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ, आज ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम जब नेटवर्किंग के लिए निकल रहे हैं तो हम सही जगह पर है या नहीं है, इस चीज को समझना भी बहुत अनिवार्य है। कि अगर आप ऐसी जगह पर जुड़ गए हो जहां पर आपको कुछ फायदा नहीं मिल रहा हो, आप पूरी अपनी मेहनत कर रहे हो बट आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा हो, आप पूरी जिंदगी उसमें लगा देंगे बट आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला नहीं। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पर नेटवर्क कर रहे हो, वो राइट प्लेस चूज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। तो थोड़े जो इफेक्टिव बिजनेस नेटवर्किंग टिप्स है वो आपसे देना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लीज। बिजनेस नेटवर्किंग का एक्चुअली अर्थ ये है कि जब भिन्न भिन्न लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जुड़ के एक दूसरे के साथ में एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं और एक दूसरे को अपने बिजनेस ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। ये प्योर बिजनेस नेटवर्किंग का मंत्र है। नेक्स्ट प्लीज। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है एक दूसरे के अंदर, जेन्युइन रहना है। ऐसे बनिए कि लोग आपसे जुड़ना चाहे, ना कि आपसे भागना चाहे। नेटवर्किंग ये है का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप सब जेन्युइन रहिए, आप अपने
आप अपने ट्रस्ट बिल्डिंग में, बॉन्ड रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर आप अपने मन से साफ रहिए, लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपके पास खुद आएंगे। नेक्स्ट प्लीज। या तो अब जब भी आप कोई भी बिजनेस नेटवर्किंग के ऑर्गेनाइजेशन में मीटिंग में जाते हो तो ये चीज ध्यान रख के जाइए कि आप क्या चाह रहे हो वहां से। सिर्फ जाना और आना काफी नहीं होगा। जैसे अब आप पीबीएन की कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस मीटिंग से आप किस किस लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो और आपको इस मीटिंग से आउटकम क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाहता हूँ, मैं पीबीएन में जाता हूँ और मुझे पता है कि मनोज जी या महेश जी आंध्रा में उनका बहुत अच्छा लिंक है, तो मैं ये माइंड में टारगेट लेकर जाऊंगा कि मैं महेश जी से मिलके आंध्रा का कुछ इंफॉर्मेशन निकालूंगा, क्योंकि मेरा बिजनेस मुझे आंध्रा में एक्सपैंड करना है। इस तरह से कुछ ना कुछ टास्क बनाकर अगर अपन मीटिंग के अंदर जाएंगे तो उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट इमीडिएटली मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात यह है कि मेंबर्स का अर्थ ये हो गया कि जो लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको समझने की कोशिश करिए, उनके साथ में इस तरह से जुड़िए कि बातचीत के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो आपसे जुड़ना चाहे। और जब जैसे ही हम लोग अच्छी तरह से जुड़ना शुरू कर देंगे, बॉन्डिंग बढ़ेगी, लोगों को आपके ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से आपको लोग बिजनेस देने में हिचकिचाएंगे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अगर मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ या आप मेरे पे भरोसा नहीं करते हो तो आप मुझे कहीं पर सजेस्ट नहीं करोगे, मेरे बिजनेस को, मेरे सर्विसेज को, मेरे बारे में कभी किसी के लिए सामने अच्छा नहीं बोलोगे। जब तक मैं आपके मन में भरोसा क्रिएट नहीं करूंगा तब तक आप मेरे लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो जब तक मैं आपके साथ अच्छा नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। नेक्स्ट प्लीज। और जब किसी के साथ में हम लोग बात करने के लिए जुड़ते हैं तो प्रयत्न ये करना चाहिए कि कॉन्वर्जेशन चलता रहे, पॉजिटिव वे में हम सामने वाले के बारे में कुछ जानने की कोशिश करें, अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करें, उसको उसके सामने वाले के दिमाग से ये निकाले कि भाई वो आखिर चाहता क्या है, तो हम उसको किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये चीज अगर माइंड में रख के हम चलेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसका लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। गिवर्स गेन एक ऐसी फिलॉसफी है जो अग्रवाल समाज के अंदर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आज हमारा ट्रेडिशन ये था कि अग्रसेन जी के जमाने से कि अगर अग्रवाल कम्युनिटी में कोई अगर आता है तो लोग हमेशा खड़े होते थे एक दूसरे को मदद करने के लिए। तो ये हमारे खून में ही है। अग्र बंधुओं के लोगों को मदद करना तो हमें पहले से सिखाया गया है। तो जब आप माइंड में ये रख के चल रहे, पहले का जमाना था कि नेकी कर दरिया में डाल, वो गया जमाना। अब हम प्रॉपर बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर जुड़ रहे हैं तो नेकी करोगे तो आपको वापस कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा। मैं अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करता हूं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई दूसरा मेरे लिए अच्छा करने की कोशिश करेगा। मैं किसी को बिजनेस दिलाता हूं तो वो कोशिश करेंगे कि मेरे लिए भी कुछ बिजनेस दिलाए, क्योंकि वो मैंने उनके लिए बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस दिलाने के लिए प्रयत्न किया था। ये चीज बहुत इफेक्टिव है और हमेशा काम करेगी। नेक्स्ट प्लीज। आई एम डिफरेंट। या आपको ये समझ के जाना है हर मीटिंग में या मीटिंग जाने के पहले कि आप किस तरह से अलग हो। ये चीज आप जब तक आप क्लियर नहीं होगे दूसरा कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों डिफरेंट हूँ, मेरी सर्विस या मेरा प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंट है और मैं किस तरह से वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहा हूँ। ये चीज आपके माइंड में क्लियर रहेंगी तो लोगों को समझाने के लिए बहुत आसानी होगी और तभी लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है, जैसे अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि आप मेरे से क्या चाहते हो या आप पीबीएन से क्या निकालना चाहते हो, उस समय पर अगर मैं जवाब के साथ तैयार नहीं हूं तो मेरा पूरा एफर्ट बेकार हो जाएगा। मेरे पास उसका जवाब तैयार चाहिए। मेरे को पता होना चाहिए कि मुझे पीबीएन से क्या चाहिए। वो चीज आप ये होमवर्क अपने को पहले करके जाना पड़ेगा। तो इस तरह से बिजनेस नेटवर्किंग के अंदर जब आप जाओगे तो उसका पूरा लाभ उठा पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने पॉइंट को पहले टच किया था कि लोगों को बेचने की कोशिश मत करो, लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। पुराना जमाना था कि पूछने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, वो फिलॉसफी अब नहीं काम कर रही है। अब लोग ये चाहते हैं कि अगर मेरे पास कोई आता है तो मेरे दिमाग में पहले ये आए कि यार ये मुझे बेचने के लिए आया है,
ये नेगेटिविटी है। ये नेगेटिविटी हमें दिमाग से निकालनी है। लोगों को ये रियलाइज कराना है कि हम जुड़ने के लिए आए हैं, और जब तक मैं जुड़ूंगा नहीं, मैं उनके कॉन्टैक्ट से उनके थ्रू बिजनेस नहीं निकाल पाऊंगा। तो डायरेक्ट बेचने की जगह उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू बिजनेस निकालने की कोशिश करना इज द राइट वे ऑफ नेटवर्किंग। नेक्स्ट प्लीज। बिजनेस नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप या कोई भी मीटिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज ये है कि आप पीछे नहीं रखे। सबसे हम अग्रवाल समाज या कोई भी आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मदद पूछने के लिए हम लोग पीछे होते हैं। ये हमारा स्वभाव है। यह ये हमारा स्वभाव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग एक दूसरे की मदद के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर पूछने के लिए शर्माए नहीं। ये सबसे अच्छा जरिया है जहाँ पर आप बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हो। और जब तक आप पूछोगे नहीं, कोई आपको दे नहीं पाएगा। जब तक आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या क्या चाहिए, कोई दूसरा भी क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या देना चाहिए। तो पूछने में कोई परेशानी नहीं है, पूछना चाहिए, पूछने पे सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। पीबीएन एक राइट प्लेटफॉर्म, प्रोग्रेसिव बिजनेस नेटवर्क, जैसे आप लोग सब जानते हो। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लोग एक काफी लोगों के साथ में जुड़ के नेटवर्क कर सकते हो। काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने अग्रवाल समाज के इसके अंदर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिससे हम मदद भी ले सकते हैं, जिनसे हम सीख भी ले सकते हैं, और जिनके तौर तरीके हम अपने बिजनेस के अंदर अपना सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रस्टवर्दी लोग हैं कि हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हम अग्रबंधु एक दूसरे पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। और हेल्दी कंपटीशन की बात ये जरूरी है कि एक बिजनेस से 10 लोग भी जुड़ सकते हैं, बट उसके अंदर हेल्दी कंपटीशन होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, मांग की फर्क आएगा, प्रोडक्ट प्रेजेंट करने में, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में डिफरेंस आएगा। इस तरीके से हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा और सबका फायदा होगा, बेचने वाले का और खरीदने वाले का, दोनों का। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी कोविड लॉकडाउन के अंदर काफी लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई की इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया और काफी बिजनेस लिया है। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज का भी लाभ अच्छी तरह से पीबीएन में आप उठा पाओगे। यहाँ पर सभी लोगों का माइंडसेट एक ही क्लियर है कि हमें यहाँ पर, हम बिजनेस के लिए आए हैं, हम बिजनेस ही करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर आपका समय नष्ट नहीं होगा, आप आओगे तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर आपको, जैसे हम इंटरनेशनली जुड़ना, मनोज जी ने पहले बताया कि इंटरनेशनली हम जुड़ना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल एरिना के अंदर आपको एक्सपोजर मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने के बहुत अच्छी चांसेस है। और सबसे बड़ी बात, जब आप चाहोगे यहाँ पर मदद आपको मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज। विजिबिलिटी एक नेटवर्किंग के पूरे खेल के अंदर सबसे बड़ा टूल है कि हम चाहते हैं कि मेंबर्स आए, जुड़े, लोगों को अपने रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताएं, लोगों से सर्विसेज लें, अपने बिजनेस के एड्स पोस्ट करें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, छोटे बिजनेस वीडियोस पोस्ट करें। तो इस तरह से क्या होगा, लोगों के बीच में आप विजिबल होगे, और जब तक आप विजिबल नहीं होगे लोग आपको जानेंगे नहीं। और आप जैसे विजिबिलिटी अपनी अपनी बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपको बिजनेस मिलता जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। So I would like to end this by saying effective networking will bring business, और PBN में effective networking का definitely आप लाभ उठाइए। Use this opportunity to get business for you. Thank you. Next please. Thank you so much. Happy networking. If there are any questions, I can take up in the question session later. Thank you so much. Thank you, Alok ji. Over to you. Thank you, Prashant. फ्रेंड्स, आज जो प्रशांत जी ने हमें बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में एनलाइटन किया है, Once again I request everyone, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही हैं, सभी को म्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओवर टू आलोक जी। थैंक यू। प्रशांत जी का जो आज टॉपिक था बिजनेस नेटवर्किंग का, वो हमारे पीबीएन का एक कोर आइडिया है। तो आई थिंक उनके जो व्यूज थे नेटवर्किंग पे, उससे आपको काफी आई थिंक यू शुड बी एबल टू practically implement many of those ideas in your business.
फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं पवन अग्रवाल को इनवाइट करना चाहूंगा, जो हमारे जो गूगल फॉर्म के थ्रू जिन मेंबर्स ने एंट्रीज की हैं, हम उनको एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। जैसे प्रशांत जी ने बताया, विजिबिलिटी इज द मेन फोकस on PBN, so I think this will provide visibility to many of our members who have taken out their efforts और जिन्होंने अपनी बिजनेस की डिटेल्स हमारे गूगल फॉर्म में अपलोड की हैं। पवन जी प्लीज। थैंक यू आलोक जी। सो पहले 50 मेंबर जो गूगल फॉर्म के थ्रू उनको विजिबिलिटी देने की कोशिश की गई है, ये 2 पार्ट में है, फर्स्ट 25 देन लेटर 25। इस क्रम में फर्स्ट आदर्श चंद गुप्ता जी, आनंद अग्रवाल जी धनलक्ष्मी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, अंजनी कुमार गोयल श्री अंजनी एजेंसी, आनंद अग्रवाल श्री बंसी ज्वेल्स, अंकित कुमार आकार कॉन्सेप्ट्स, अनूप अग्रवाल श्री चिमनलाल ज्वेल्स, अशोक कुमार सिंघल अशोक टेक्सटाइल, अश्विन अग्रवाल एनके स्विचेस, धनंजय बंसल त्रिवेणी फर्नीचर ज्वेल, धर्मेंद्र अग्रवाल शिव सुपरमार्केट, दिनेश कुमार रूंगटा जी श्रद्धा क्रिएशंस, गणेश अग्रवाल श्री देवी एजेंसी, गर्वित बंसल सुरभि कैटर्स, हरि किशन अग्रवाल जी वेबलिंग ऑर्गेनिक, हेमचंद गुप्ता जी आदर्श मोटर, जयप्रकाश गोयल पर्ल्स एंड ज्वेल्स, जमुना प्रसाद अग्रवाल जी अग्रवाल ट्रेडर्स, जितेंद्र मित्तल भाग्य पॉलीमर इंडस्ट्री, कार्तिक पित्ती एंड एसोसिएट्स, महेश अग्रवाल जी श्री श्याम इंटरप्राइजेस, मनीष फिटकरीवाला बालाजी विनायक एजेंसीज, मंजू गुप्ता श्री वैष्णवी ज्वेल्स, प्रवीण जैन प्लास्टिक इंडस्ट्री, पायल कानोडिया मेडमॉल फार्मेसी, and Shaurabh Agrawal TAG and Company. That's all from my side. Over to Alok ji. Thank you Pawan जी। फ्रेंड्स अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली अंकिता जी लेंगी, अंकिता गुप्ता। ये टॉपिक है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग। फ्रेंड्स आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हम सभी के लिए, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं इस लॉकडाउन में हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेसेस को नॉर्मलाइज करने के लिए या नॉर्मल मैनर में रन करने के लिए। वी हैव ऑल फेस्ड डिफिकल्टीज इन रनिंग आवर बिजनेस बिकॉज एज यू ऑल नो द फ्यूचर इज नॉट फिजिकल बट द फ्यूचर इज डिजिटल। So I think Ankita will help us out in telling how you can focus on digital marketing and technology to grow your business. Over to you, Ankita. धन्यवाद आलोक जी। Sorry Ankita, before I just give it to you, I think I take 2 minutes to introduce all my participants to our speaker for today. Ankita is a young entrepreneur. She owns a digital marketing and development agency with the name Unfurl Media. Friends, Unfurl Media is the business name of Ankita Gupta. She holds a diploma in business management and administration from Woxen School of Business. Her specialization is in business development, branding, marketing, and digital media with almost 4 years of experience. Ankita has worked with almost 35 plus brands in her career so far, which are local, national, and global brands. She is a creative personality. She enjoys cooking, baking, painting, designing, and is also a fitness enthusiast. One can always approach Ankita for any queries which are relating to growing business through digital means. Friends, let's learn about digital marketing from Ankita today in the session. Thank you. धन्यवाद आलोक जी। मेरा साउंड रीसाउंड हो रहा है क्या? नहीं, it's okay. थोड़ा सा इको हो रहा है। ओके फाइन। हेलो, थैंक यू। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप लॉकडाउन के वक्त हम सब घर पे सेफ एंड सुरक्षित है। सो मेरा आज का टॉपिक इज अबाउट हाउ टू ग्रो बिजनेस विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना हो सके हिंदी में अपना प्रेजेंटेशन दूं। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
नेक्स्ट। हम लोगों को बहुत बार समझ में नहीं आता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। सो बेसिकली मैं आपको फर्स्ट डेफिनेशन समझाना चाहती हूँ डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। कोई भी बिजनेस या ब्रांड जब किसी भी तरह का एक प्रयास या कोशिश करता है अपने कस्टमर्स या फिर उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो उनका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं थ्रू अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और टेक्नोलॉजी और एनी काइंड ऑफ इंटरनेट सोर्स, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे लेफ्ट साइड देख सकते हैं ये थोड़े सोर्सेस है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि सबसे पॉपुलर सोर्स जो होता है वो है सोशल मीडिया। आज ऐसा कोई वक्त नहीं है जिनमें हम यहाँ जो सोशल मीडिया में नहीं है, या तो हम फेसबुक यूज करते हैं या तो हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं या सबसे लीड हम गूगल यूज करते हैं। आज अगर हमें कुछ भी ढूंढना है तो हम सबसे पहले बोलते हैं प्लीज गूगल करिए। तो अब आगे के प्रेजेंटेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी और किस तरह का डिजिटल मार्केटिंग आप अपने बिजनेस और ब्रांड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो बहुत बार मैंने अपने करियर में सुना है लोगों को कहते हुए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत अच्छा होता है एंड डिजिटल मार्केटिंग शायद हमारे बिजनेस या हमारे ब्रांड के लिए नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ आपको कब ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी चाहिए और कब डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम लोग सब मिलके एक होटल या रेस्टोरेंट में बैठ के मीटिंग कर रहे होते तो उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। जो प्रशांत भैया ने बहुत क्लियरली समझाया है नेटवर्किंग भी कहलाता है। अगर हम ये मीटिंग आज वेबिनार थ्रू अ इंटरनेट प्लेटफॉर्म जूम या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं देन इट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये है बेसिक डिफरेंस। इसका ये मतलब है कि हर चीज हम डिजिटल में भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल में भी कर सकते हैं, बट जिस तरह से हम उसको कर रहे हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फायदे क्या है और डिजिटल मार्केटिंग के फायदे क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक लार्जर ऑडियंस को जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दे रहे हैं, तो क्या होगा जितने टाइम्स ऑफ इंडिया के सब्सक्राइबर्स है वो सब उस आर्टिकल को देख पाएंगे। बट डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है जब आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म यूज करते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया हो गया या गूगल हो गया या फिर जो अदर सोर्सेस होंगे जो मैं आपको आगे किसी भी तरह के जो आप डिजिटल मीडिया यूज करते हो आप एग्जैक्टली अपने टारगेट ऑडियंस को बता सकते हो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप हर किसी को बताओ। आपका टारगेट ऑडियंस हैदराबाद में हो सकता है, यूएस में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो आपको जिसको अपना एडवर्टाइजमेंट बताना है आप उनको बता सकते हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज वो आपके सामने टैंजिबल एसेट में होता है। या तो एक न्यूज़पेपर फॉर्मेट है, या तो एक बिलबोर्ड है, या तो आपके हाथ में एक प्रिंटेड कॉपी है या मैगजीन है, या किसी भी तरह का टैंजिबल फॉर्मेट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। But whereas digital marketing is something which is there on a digital media, it can be any kind of screen, technology या फिर कोई सोर्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। आप डिजिटल मीडिया के थ्रू पर्सनलाइज कंटेंट भेज सकते हैं। जैसे आपके पास में भी मेल, फीमेल, बच्चे, बड़े अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, तो आप मेल प्रोडक्ट के लिए मेल को टारगेट कर सकते हो, फीमेल प्रोडक्ट के लिए फीमेल को टारगेट कर सकते हो, किड्स प्रोडक्ट के लिए पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। रीटारगेट ऑडियंस को आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबने ये महसूस किया होगा अगर आप अमेजोन या फिर किसी इस तरह की वेबसाइट पे जाते हैं उसके बाद आप गूगल पे जाएंगे, आप फेसबुक पे जाएंगे, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट वापस दिखता है। दिस इज कॉल्ड रीटारगेटिंग द ऑडियंस। आप इजीली अपने ऑडियंस जो आपको देख चुकी है उनके पास बार बार जा सकते हैं और बता सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं कि देखिए आई एम हियर, में अभी भी आप मुझे खरीद सकते हैं, जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग बहुत इजीली एंगेजिंग है क्योंकि कस्टमर आपको डायरेक्टली आपसे बात कर सकता है, वो आपके ऐड पे कमेंट कर सकता है, लाइक कर सकता है, शेयर कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो नहीं कर सकते हैं। वी हैव एन एज ओवर कंपटीशन बिकॉज सब लोग डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं होते हैं। अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स डिजिटल मार्केटिंग पे है तो हम देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर हम इसका एक क्लासिक एग्जांपल ले तो हम बात कर सकते हैं जोमेटो एंड स्विगी की। जोमेटो का जब एक डिलीवरी बॉय ने एक पार्सल खोल के खाया था, दे वेंट वेरी वायरल एंड उनका बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुआ था, जिसका फायदा स्विगी एंड कई अदर कॉम्पिटिटर्स ने उठाया था। तो इस तरह से हम बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं डिजिटल मीडिया पे। और यहाँ पे आपका ROI इजीली मेजर्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रुपए डाल रहे हैं डिजिटल मीडिया में तो आपको पता चलेगा कि उस 10 रुपए आपके पास वापस कैसे आ रहे हैं, कितने लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, वो लोग क्लिक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं।
बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ये नहीं कर सकते। आपको बस ऐड डालना है, वेट करना है कि कोई आपको कॉल करेगा या नहीं करेगा, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। इससे आपका ब्रांड बिल्डिंग भी होगा, क्योंकि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, आप अपने नेटवर्क को बोल सकते हैं। जैसे आप पीवीएन ग्रुप में डाल सकते हैं, देखिए मेरा ये फेसबुक पेज है, आप प्लीज जाके लाइक करिए, मेरा ये प्रोडक्ट अमेजोन पे, आप प्लीज जाके यहाँ से परचेज कीजिए। बट डिजिटल मीडिया के फायदे के साथ साथ थोड़े से नुकसान भी है, जैसे कि नेगेटिव फीडबैक। तो कस्टमर, ऐसा जरूरी नहीं कि हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगा। तो अगर कस्टमर आपकी तारीफ कर सकता है तो आपके बारे में बुरा भी बोल सकता है, बट ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि आप इसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट एंड सर्च इंजन रेगुलेशन। तो कुछ सर्च इंजन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, आप ये कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो इस तरह के कई रेगुलेशंस को आपको ध्यान में रखते हुए अपने मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट को देखना पड़ता है। वेराज ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। हम सबको पता है, कभी ना कभी हमने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालने की जरूर कोशिश की होगी। तो एक छोटा सा आर्टिकल कहीं कोने के एक पेपर में आपको 1000, 2000, 5000 रुपए कॉस्ट करता है। बट अगर आप डिजिटल मीडिया में 5000 रुपीज स्पेंड करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो आप हजारों और लाखों लोगों तक अपना एड पहुंचा सकते हैं एंड पूरा मंथ आप पहुंचा सकते हैं। वेराज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर में सिर्फ वो एक दिन के लिए आएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स दिखाना चाहती हूँ, जो डिजिटल मीडिया के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है कि ग्रोथ किस तरह हुआ है डिजिटल मीडिया में। द फर्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट द ग्लोबल डिजिटल ग्रोथ। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2019 से कंपेयर करके 2020 अप्रैल तक 82 मिलियन लोगों ने डिजिटल मीडिया को ज्वाइन किया है एंड 128 मिलियन प्लस लोगों ने यूनिक मोबाइल फोन यूजर्स हमारे रजिस्टर हुए हैं वर्ल्ड वाइड। And internet users have increased with 301 plus million people. And social media users, which is a very good number, 304 plus million people have joined social media in last 1 year. Next slide, please. Talking about the digital around the world. तो अप्रैल जैसे हमें पता है कि ये लॉकडाउन था across the globe. तो हम सब इंटरनेट में खोज रहे थे, हम सब इंटरनेट को देख रहे थे किसी ना किसी तरह से, या तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, या टीवी हो गया, या सीरियल्स हो गए, क्लासेस हो गए, किसी भी चीज के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, हम इंटरनेट यूज कर रहे थे। तो डेफिनेटली अप्रैल में यूजर्स ऑफ डिजिटल हैव बीन अ लॉट। तो वी सी 55% ग्रोथ इन द अर्बनाइजेशन ऑफ डिजिटल मीडिया एंड ये सारे मैं आपको सारा पीपीटी शेयर कर सकती हूँ और आप आराम से सारे स्टैटिस्टिक्स बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इंक्रीज इन द ऑनलाइन एंड डिजिटल एक्टिविटी ड्यू टू कोविड-19 क्या हुआ है? तो मोर ऑफ शोज एंड फिल्म, 57% लोग इंक्रीज हुए हैं जो पहले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं देखते थे बट अब देख रहे हैं। मैं ये स्टैटिस्टिक्स इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको अगर डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं। तो स्पेंडिंग लॉग 47% लोगों ने बोला है अगर आप 10 मिनट पहले डिजिटल मीडिया यूज करते थे तो आप आज 14 से 15 मिनट यूज कर रहे हैं। तो 47% आपका डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया का यूसेज इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम जनरली एक हमारे दिमाग में एक होता है कि नहीं सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया तो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, छोटे बच्चे होते हैं या फिर टीनेजर्स है या तो फिर वेरी यंग पीपल अराउंड द एज ऑफ 20 या 15 to 35 लोग सिर्फ डिजिटल मीडिया यूज कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे हम इस स्टैटिस्टिक्स इस स्लाइड को देखेंगे तो इवन द पीपल ऑफ 45 ईयर्स टू 54 ईयर्स और 55 ईयर्स टू 64 ईयर्स के लोग भी इतने इंक्रीज हुए हैं डिजिटल एंड सोशल मीडिया पे। तो इट्स नॉट कि अगर आपका प्रोडक्ट उनको भी टारगेट करना चाहते हैं तभी भी आप सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपके दादाजी है या फिर कोई है या फिर आपके पापा है जो 70 प्लस है या 60 प्लस है, वो किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं होंगे या फिर उनको शायद गूगल भी चलाना ठीक से नहीं आता होगा, बट वो डेफिनेटली फेसबुक पे है क्योंकि फेसबुक गिव्स आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म देता है, वो आपको लोगों से कनेक्ट करता है। जैसे नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेसबुक वाज वन फर्स्ट प्लेटफॉर्म हु एक्चुअली स्टार्टेड द नेटवर्किंग एज अ सोर्स, अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग। आप किसी से कनेक्ट हो सकते हो, बात कर सकते हो, अपने इमोशंस शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फेसबुक रीच अगर हम देखें तो इंडिया में मैक्सिमम यूजर्स ऑफ फेसबुक अवेलेबल है एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर 8% इंक्रीज और हुआ है इंडियन फेसबुक यूजर्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल यूज करते हैं या फिर एज स्पेसिफिक लोग यूज करते हैं। फीमेल्स मेल्स दोनों का कॉम्बिनेशन करेक्टली अक्रॉस द एज वी हैव ऑल द पीपल हु आर देयर ऑन फेसबुक।
फेसबुक हम सबको ट्रैक कर रहा है, हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। हम अपनी खुशी के लिए, लोगों से नेटवर्किंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए। फेसबुक पे कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपना बिजनेस कर सकते हो ऑर्गेनिकली बिना कुछ स्पेंड करे, जो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक सर्वे हुआ था जहां पूछा गया था कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारे ब्रांड्स ने अपना एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया रोक दिया गया था, बट 65% ऑफ इंडियन पीपल हैव सेड दैट आप हर ब्रांड को एडवर्टाइजिंग सिमिलरली कंटिन्यू करना चाहिए एंड बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपने कस्टमर्स और अपने लोगों से बात कर सकते हो, क्योंकि वो ज्यादा इंटरनेट पे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये हम सबने सोचा है कि अभी कोविड है, सब फ्री है तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बाद में शायद नहीं करेंगे, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि इतने परसेंटेज ऑफ लोगों ने बोला है कि इवन आफ्टर कोविड-19 और इवन आफ्टर द लॉकडाउन एंड हम सब सोशल मीडिया, हम सब डिजिटल प्लेटफॉर्म, हम सब टेक्नोलॉजी यूज करना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये मेरे 3 फेवरेट ब्रांड्स है जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली, इंडियन ब्रांड्स बहुत ब्यूटीफुली डिजिटल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को यूज किया है अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट स्विगी। अगर आज हम एक 5 साल के बच्चे से पूछते हैं, बेटा आप, वो आके हमें बोलेगा मम्मा हमें आइसक्रीम खानी है, आप स्विगी पे ऑर्डर दे दीजिए। तो इस तरह से स्विगी ने हम सबका माइंडसेट थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू डिजिटल मीडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक ऐप डेवलपमेंट से स्टार्ट किया है। ऐप इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मीडिया। तो उन्होंने अपना ऐप इतना इंटरेस्टिंग और इतना इजी बनाया है लोगों को यूज करने के लिए कि हम सब उसको इजीली यूज कर रहे हैं। एंड आज $1.6 बिलियन का फंडिंग स्विगी के पास है। कल्ट फिट। आज तक जब हम फिटनेस के बारे में सोचते थे तो हम हमेशा सोचते थे तलवाकर्स, गोल्ड जिम, या फिर हम सोचते थे कि अरे हमें जाके बोरिंग वेट्स उठाने पड़ेंगे। बट कल्ट केम अप विद अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन आज लॉकडाउन के टाइम पे भी वो अपना डिजिटल मीडिया, अपना सोशल मीडिया यूज करके इतना ब्यूटीफुली लोगों को घर पे फिटनेस दे रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी रीसेंट ब्रांड जो ओपन हुआ है, बट आज ये ग्लोबली बहुत एक बड़ा ब्रांड हो चुका है। पेटीएम। पेटीएम वाज स्टार्टेड इन 2010। हमें से कितने लोगों को पेटीएम के बारे में 2010 में पता था? आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी ज्यादा पेटीएम के बारे में पता था। या फिर हमने सोचा था कि हम पानीपुरी बंडी पे जाएंगे एंड 10 रुपए भी हम एक पेटीएम के थ्रू डिजिटल मनी ट्रांसफर करेंगे, एक बैंक ट्रांसफर होगा। बट पेटीएम हैज मेड दैट पॉसिबल थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल ऐप एंड अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस स्लाइड में आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सेम कॉन्सेप्ट के साथ आए थे, बट इतने पॉपुलर नहीं हो पाए या इतना कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाए जितना दूसरे। फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा। फूड पांडा was started way before Swiggy, but it could not make to the audience. Why? Because they could not use the digital technology properly. But Swiggy has nailed it. BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger was way started beyond 2008 या 2009 में वो स्टार्ट हो गया था। बट हाउ आज WhatsApp, BlackBerry Messenger किसी को याद भी नहीं है। क्यों? Because they did not use the proper digital media or proper technology. But WhatsApp has actually nailed it. वीको हम जन्मों से सुन रहे हैं, हमारे मम्मी, उनके मम्मी भी वीको यूज करते थे। बट आज कितनी न्यू जनरेशन है जो वीको के बारे में जानती है? इन वीको एंड पतंजलि दोनों का है कि हम आयुर्वेदिक है, बट पतंजलि हैज नेल्ड इट क्योंकि उन्होंने करेक्ट टेक्नोलॉजी एंड करेक्ट डिजिटल मीडिया, करेक्ट ऑडियंस को टारगेट किया है। माई स्पेस, बहुत हम लोगों में आई गेस मैक्सिमम 90% लोग जानते भी नहीं थे कि माई स्पेस है क्या। MySpace was a similar platform like Facebook, but Facebook has nailed it. आज हम सब Facebook को यूज कर रहे हैं। हमने स्टैटिस्टिक्स देखा है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किया हुआ प्लेटफॉर्म फेसबुक है। फेसबुक ने राइट टेक्नोलॉजी, राइट टाइम, राइट ऑडियंस को टारगेट किया एंड इट हैज नेल्ड इट। टाइप बहुत पहले से बहुत सारे फॉर्मल कॉर्पोरेट फेसबुक टाइप यूज करते हुए आए हैं, बट डिड यू एवर सी अ नॉर्मल किसी को टाइप यूज करते हुए? नहीं। बट जूम, आज हमारी मीटिंग भी जूम पर चल रही है because Zoom has actually reached the right audience at the right time in the right place. डिजिटल मीडिया का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप अपने एड्स डालते जाए, किस तरह का आप कंटेंट डाल रहे हैं, किस तरह का यूजर इंटरफेस है, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को आप यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पेपाल हैज मेड इटसेल्फ वे बियॉन्ड बिफोर द टाइम ऑफ डिजिटल पेमेंट, बट इट कुड नॉट मेक टू द ऑडियंस ऑफ वर्ड ऑफ माउथ। मतलब अगर आप कभी पूछते थे डिजिटल पेमेंट मुझे करना है, मुझे मनी ट्रांसफर करना है, तो आपने कभी सुना नहीं होगा अरे मुझे पेपाल कर दे। बट आज आप सुनते हैं मुझे मनी ट्रांसफर कर दे, मैं आ नहीं पाऊंगा, तो आप बोलते हैं पेटीएम कर दे। तो पेटीएम हैज एक्चुअली मेड दैट मार्क टू द कस्टमर ऑडियंस डायरेक्टली। और जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि तलवाकर एक ऐसा था फिटनेस ब्रांड तो बहुत पहले से था, अ लॉट ऑफ फंडिंग वाज देयर।
बट इट कुड नॉट मेक टू द वर्ड ऑफ माउथ ऑफ द पीपल। बट कल्टफिट आज हम बोलते हैं, कल्टफिट खुद एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो हम खुद प्रमोट करते हैं। जैसे प्रशांत जी ने बोला नेटवर्क, हम सब इसके मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, इसको हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, हम सब इसके इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमें अच्छा लगता है तो हम और 10 लोगों को बोलते हैं, 10 100 को बोलते हैं, 100 1000 को बोलते हैं। बट एक ऐसा मेरा फेवरेट ब्रांड है जो पहले भी सक्सेसफुल था, आज भी सक्सेसफुल है एंड कल भी सक्सेसफुल होगा, एंड इट्स अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया, दैट इज अमूल। अमूल ने हमेशा डे वन से राइट मीडिया, राइट चैनल्स, चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, डिजिटल हो, दे हैव यूज्ड द राइट कम्युनिकेशन, राइट मीडिया। तो अगर आपको कभी भी डिजिटल मीडिया या फिर करेक्ट एडवर्टाइजिंग की किसी भी टेक्निक के बारे में जाना है, प्लीज रेफर टू अमूल एडवर्टाइजिंग। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब इस स्लाइड के थ्रू मैं आपको एक थोड़ा सा जिस्ट दूंगी। आप अपना पर्टिकुलर ब्रांड जो है उसके लिए बेसिक, अगर आप किसी एजेंसी को हायर नहीं करना चाह रहे हैं या आप किसी एजेंसी को अगर हायर करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीजें जो आपको ध्यान देनी है या फिर आप इमीडिएटली क्या स्टार्ट कर सकते हो। आपका जो भी ब्रांड है, आप इमीडिएटली सबसे पहले एक फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, एक फेसबुक पेज बनाएंगे, जो एक बहुत इजीली स्टेप्स है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज पर्सनली कॉल मी एंड आई कैन ऑलवेज गाइड यू। तो आप एक फेसबुक पेज बनाएंगे, वहां अपना लोगो डालेंगे, अपना बेसिक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और रोज कम से कम एक पोस्ट या फिर हफ्ते में 2 पोस्ट आप कर सकते हैं अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप ज्यादा डिजाइनिंग नहीं जानते हैं तो आपके प्रोडक्ट की पिक्चर खींच के आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। फेसबुक पे कहीं ऐसे फीचर्स है लाइक मार्केट प्लेस, आप मार्केट प्लेस पे जा सकते हैं, अपना रेंटल हाउस, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज, आप कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं एंड फेसबुक फ्रीली आपको मार्केट करता है। इट इज सिमिलर टू अमेजॉन बट इट इज फ्री, यू डोंट हैव टू साइन अप फॉर इट। तो उसके अलावा आप गूगल पे जा सकते हैं। गूगल पे मैंने बहुत बार सुना है, बहुत सारे गूगल के एम्प्लॉइज आपके पास डोर टू डोर आ रहे हैं, 5 to 7,000 रुपीज चार्ज करते हैं, माई बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। आपकी इसकी जरूरत नहीं है। आप एक बेसिक ऐप कॉल्ड माई बिजनेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना खुद का गूगल बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आप अपना गूगल मैप्स बना सकते हैं, उसमें आप अपना ब्रांड लिख सकते हैं, आपके टाइमिंग्स लिख सकते हैं एंड अपनी सारी डिटेल्स अपनी गूगल पे आप फ्री में डाल सकते हैं थ्रू अ ऐप कॉल्ड गूगल माई बिजनेस। आप ये फ्री में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड ऐप है, आप सब उसको यूज कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में आप व्हाट्सएप, आपके पास श्योरली कस्टमर्स होंगे थोड़े, आप सारे कस्टमर्स की परमिशन लेके एक ग्रुप बना सकते हैं एंड इफ दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टू बी इन अ ग्रुप, आप उनको बोल सकते हैं, वो आपका नंबर सेव करेंगे। रोज आप एक व्हाट्सएप स्टेटस लगा सकते हैं क्योंकि हम सब व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बड़ा ब्रांड हो तो आप एक वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। आजकल हम एक सिंगल पेज वेबसाइट 10 to 15,000 रुपीज में स्टार्ट होती है एंड अगर आपको एक बड़ी वेबसाइट चाहिए तो भी इजीली 40-50,000 में बन जाती है। बट एक वेबसाइट आपका एक ऑनलाइन स्टोर होगा। अगर हम देखें इस लॉकडाउन के समय पे, द ब्रांड्स व्हिच वर एक्चुअली वर्किंग लॉकडाउन के टाइम पे भी विद द ब्रांड्स जो सोशल मीडिया पे थे, जिनकी वेबसाइट थी या जिनका ऐप था, उन्होंने किसी ना किसी तरह से अपनी कमाई की सोर्स की है। बट जो लोग टोटली फिजिकल स्टोर या फिर एक फिजिकल इंटरैक्शन बिजनेस पे डिपेंडेंट थे, वो एक्चुअली लॉकडाउन के बहुत बड़े शिकार हुए हैं। बट इस टाइम में हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो एक बेसिक चीजें जो हम कर सकते हैं, अपना एक सोशल मीडिया पेज ओपन कर सकते हैं, गूगल बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अपने सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बोल सकते हैं आपका व्हाट्सएप नंबर सेव करें और आप उनको एग्जिस्टिंग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट, छोटी सी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं टू गेट स्टार्टेड विद, क्योंकि वहां पे वेबसाइट पे लोग आएंगे, आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे, आपके सर्विसेज देखेंगे एंड वो कहीं ना कहीं पे उसको शेयर करेंगे। ये एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम यूज कर रहे हैं वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे हमने एक पीबीएन का नेटवर्किंग ग्रुप बनाया है। हम रोज देख रहे हैं, कोई आके बोलता है आपको मास्क चाहिए, हम मास्क बेच रहे हैं, आपको सैनिटाइजर्स चाहिए, हम सैनिटाइजर्स दे रहे हैं, आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ चाहिए, हम दे रहे हैं, आपको डिलीवरी चाहिए, हम दे रहे हैं, आपको फूड चाहिए, हम दे रहे हैं। तो टेलीग्राम जैसे ऐप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप पीबीएन ग्रुप में ज्वाइन करिए, अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए और किसी और को भी अगर किसी प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप किसी और को एक इन्फ्लुएंसर बन के उनको सजेस्ट कीजिए ऑन के। So I would like to end my presentation today by saying a very famous quote by Bill Gates. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Thank you. Dhanyawad. Very true. Thank you, Ankita. Very true, Ankita. Very true. फ्रेंड्स, जो अंकिता जी ने आज हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया, आई थिंक आप सब अग्री करेंगे कि आज इस लॉकडाउन के पीरियड में हम सब इसे प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं। जो बिजनेसेस डिजिटल ऑलरेडी थे या जिन्होंने अपने प्रोफेशन में डिजिटल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यूज किया था, उन्हें लॉकडाउन से
जरा भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई अपनी बिजनेस रन करने में। जैसे अगर मैं आपको मेरे प्रोफेशन का ही अगर एग्जांपल दूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आप सब जानते हैं कि हमारा काम मोस्टली कंप्लायंस से रिलेटेड है। तो बहुत सारी सीए फर्म्स ऐसी हैं अक्रॉस द कंट्री जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी को काफी पहले अडॉप्ट किया और अपना काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोग कर रहे थे। ऐसे फर्म्स ने अपना बिजनेस ऑलमोस्ट 80% कैपेसिटी पे रन किया है इवन इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। तो ये सेम एग्जांपल आई थिंक काफी बिजनेसेस में ये एग्जांपल होल्ड करता है, जहां पे अगर आपने डिजिटल को अडॉप्ट किया है तो आप लेस इम्पैक्टेड थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीरो इम्पैक्टेड थे, क्योंकि business definitely impact हुआ है इस लॉकडाउन पीरियड में, but yes, the level of impact was different for people who adopted technology. So I think based on the talk which Ankita has given us today, we'll try to implement a lot of it in our on our platform also through PBN. मैं पवन जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगा for introducing the next 25 set of PBN members who have registered through Google Form. थैंक यू आलोक जी। सेकेंड पार्ट में हम आ रहे हैं जहां राजेश संघी जी, संघी इवेंट्स, शंकर लाल अग्रवाल जी, सांची क्रिएशंस, शिव कुमार अग्रवाल जी, गोपाल मार्केटिंग, सुरेंद्र अग्रवाल, JVR रिटेल्स, सुरुचि डोर द विंटेज थ्रेड, तरुण अग्रवाल, उदय गुप्ता जी, सिमकॉन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल नीड्स, विकास मोदी, विकास एजेंसीज, विनय अग्रवाल जी, श्री श्याम पेट्रोलियम, विनोद अग्रवाल, शुभम लॉजिस्टिक सर्विस, विवेक गुप्ता जी, विवेक इंडस्ट्रीज, योगेश कुमार सिंघानिया, MY सिंघानिया एंड कंपनी, युग गोयल, ओम लेमिनेट्स, गिरीश अग्रवाल, GK हार्डवेयर एंड प्राइवेट लिमिटेड, हेमचंद गुप्ता जी, आदर्श मोटर्स, आदर्श अग्रवाल, अग्रवाल गारमेंट्स, हरिमोहन सराफ, अंजू प्लाईवुड, अंजुली तुलसियान, राइटर, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड सोशल मीडिया कंसल्टेंट, गौरव गुप्ता, केसर डिस्ट्रीब्यूटर्स, सो हमारे पास पहले क्वेश्चन पूछने के लिए अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज अपने आप अपना क्वेश्चन पूछिए। अभिषेक जी। Hello, good afternoon. Good afternoon. I have a question. When we are taking webinars on Zoom meeting, is there any planning we have for the physical meeting of the PBN after the opening of the lockdown? हाँ अभिषेक जी, हम लोगों का जब लॉकडाउन खत्म होगा हम लोग मंथली मीटिंग्स भी PBN की ऑर्गेनाइज करेंगे और ये ब्रेकफास्ट पे PBN की मीटिंग होगी महीने में एक बार किसी संडे के रोज, और उसका PBN के ग्रुप पे इसका डिटेल डाल दिया जाएगा और जो मीटिंग जो शेड्यूल होगी उसके बारे में और उसका विवरण पूरा PBN के ग्रुप के टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। We are definitely having that plan of holding physical meeting of the members जहां पर वो नेटवर्किंग कर पाए। Oh, okay, thank you. तो सर अभी जो प्रोग्रेसिव के अंदर काम चल रहा है वो रनिंग बिजनेस के लिए है। आगे कुछ प्लानिंग है स्टार्टअप्स के लिए? जैसे अपने समाज के अंदर काफी बच्चे हैं जो काफी टैलेंटेड है, लेकिन उनको अभी कुछ काम के लिए आगे जैसे काम करने की अगर उनकी इच्छा हो तो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उसकी कुछ प्लानिंग है आपके यहाँ पर? मैं ये प्रश्न प्रशांत को फॉरवर्ड करता हूँ। प्रशांत। थैंक यू मनोज जी। देखिए एक्चुअली स्टार्टअप के लिए हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास में कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो आप ऑफर कर रहे हो, जो आप लेकर आ रहे हो, यू आर वेलकम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नया बिजनेस हो या पुराना बिजनेस हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए ओपन है, सबके लिए एक जैसी है। तो वो गाइडेंस डेफिनेटली अवेलेबल है सबके लिए। वो गाइडेंस अवेलेबल है। हमारी जो प्रोफेशनल स्टीयरिंग टीम है उसमें पूरे हर तरीके के प्रोफेशनल लोग जुड़े हुए हैं। आपको हर सदस्य को टेक्निकल
सपोर्ट पूरा मिलेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ाइए, आपको हर तरीके से आप लोगों की सहायता की जाएगी। Thank you very much, sir. Next, Yogesh, Vivo 1726. Please ask a question. The three questions. The first question is that does PNB provide the mentors? Because any person who is going to start up a new startup, he need a mentor wherein the guidance should be provided. So does PBN give this? The very first question. Yes. PBN जो है अभी शंकर आपका प्रश्न शंकर अग्रवाल जी के प्रश्न से मिलता जुलता है। Yes. पीबीएन के जो स्टीयरिंग कमेटी के 15 सदस्य हैं और भी हमारे साथ और भी काफी लोग अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। हम आपको जो भी आपको मेंटरिंग सर्विसेज हमारे से चाहते हैं, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। वी आर ऑल we are committed to give the maximum service to our members. Definitely we are into this. My next question is to Ms. Ankita. This, as you said about social media, SMM, is it useful for all B2B customers or B2C products? हेलो योगेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल B2B हो या B2C हो, हर बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका टोटली B2B कस्टमर बेस होता है, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर गूगल पे आप एग्जैक्ट कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो B2B बिजनेस भी लोग देखते हैं कि वेंडर्स कहाँ पे मिलेंगे या फिर होलसेलर्स कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है। तो इन तरह के लोगों को हम कस्टम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। And in digital marketing, can we come to know that what we are investing and what ROI we got on our investment? Last question. Yes, absolutely. You can know. So through advertising, you can surely know how much you're investing, how many people you're reaching, and there are 15 plus type of advertisements, and उसके अंदर भी बहुत सारे bifurcations होते हैं, जहाँ पे आप type of advertisement and type of audience, type of ROI, आपको click पे pay करना है या impressions पे pay करना है, आपको किस तरह से उस platform को pay करना है, हम वो भी decide कर सकते हैं। It was really very interesting session. I don't have any question as such. I like to congratulate Manoj bhai, your team, and both the speakers, Prashant and Ankita. They spoke very well. It was really a wonderful initiative, Manoj bhai, and we'll take it forward. Subsequently, I'll be in touch with you, and we'll be in touch with you. Thank you. The first question is from Vikas Modi ji. He wanted to know, like, is there a correct strategy or platform for brand like retails? विकास जी, जैसे आपने बोला मल्टी ब्रांड, तो फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिक लेते हैं Amazon इज नॉट अ सिंगल सर्विस और अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रांड, बट वो बहुत बेहतरीन अपना डिजिटल मीडिया यूज करता है। डिजिटल मीडिया का ये मतलब नहीं होता है कि आपका एक सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। आप सारा प्रोडक्ट का एक प्रोफाइल हम बनाते हैं आपका डिजिटल मीडिया पे, एंड आपके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिफरेंट एड्स रन करते हैं। जैसे अगर कोई स्पेयर पार्ट है तो वो स्पेयर पार्ट के लिए हम एक ऑडियंस सेट बनाते हैं, एंड अगर कोई दूसरा बिजनेस है तो वो दूसरे बिजनेस के लिए दूसरा सेट बनाते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड एग्जैक्ट उस ऑडियंस को ही हम टारगेट करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सारा हैदराबाद, सारा इंडिया को टारगेट करते हैं। हम एक स्पेसिफिक कस्टम ऑडियंस हमारे पास, हम एग्जैक्ट बिहेवियर और इंटरेस्ट के हिसाब से हर इंसान को टारगेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। Meanwhile, another question is from Raghuvi Reddy. Can makeup artist join in PBN? Makeup artist? Yeah, definitely you can join. I would like to add one thing. Like, we do not have any restriction. मतलब PBN पे कोई restriction नहीं है कोई भी business के लिए। The only restriction that we have currently is ये platform केवल हमने अग्रवाल बंधुओं के लिए बनाया हुआ है। तो any अग्रवाल बंधु into any business is welcome open heartedly. Yes. बहुत जल्दी हम लोग इसकी एक वेबसाइट भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आप अपने एंटरप्राइज को रजिस्टर कर सकते हैं और वो आपका वेबसाइट पे दिखेगा। तो इसका बहुत जल्दी हम लोग जब लॉन्च करेंगे, एक सेशन लेंगे जिसमें हम बता देंगे कि कैसे आप लोग अपना या अपने फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं पीवीएन पे, सो दैट बाकी की जितनी भी पब्लिक है या जिसको आपसे डील करना है वो कैसे आपके थ्रू मतलब आपके पास पहुंच सकते हैं अपने बिजनेस डील को लेके। Good evening, everyone.
My question is somewhat related to what Yogesh ji and Shankar ji has asked. Sir, मेरा सवाल है like for being a youth generation, there are many kids out here कि वो अपने पास उनके पास काफी अच्छे business ideas है, but they don't know from where to start and how to proceed. So sir, BBN के पास ऐसा कुछ platform मिल पाएगा कि जैसा youth generation या students है वो directly face to face टीम से कम्युनिकेट कर कर कुछ बिजनेस से कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कैसे प्रोसीड किया जाए, उसकी गाइडेंस ले पाएंगे क्या? Ankita will like to answer your question. Yes. हेलो अक्षित जी, जैसे आपने करेक्टली बोला, क्योंकि मैंने भी एग्जैक्टली 2 years बैक अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एंड आई वाज श्योरली लुकिंग फॉर सम गाइडेंस. तो पीबीएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्टीयरिंग कमिटी मेंबर्स है जो टोटली एक्सपीरियंस फ्रॉम अक्रॉस ऑल द फील्ड्स है एंड ऑल्सो बहुत सारे अदर पीपल है. तो अगर ये यूथ पीबीएन को ज्वाइन करेगा तो अगर उनको बिजनेस पार्टनर्स चाहिए तो वो बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ सकते हैं. अगर उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अपना बिजनेस आइडिया वहां पे प्रेजेंट करके देख सकते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर वो टोटली मनोज भैया है जैसे बहुत लोग हैं जो टोटली प्रोफेशनल है, जो बहुत सारे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं, वो डेफिनेटली सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हैं. या फिर आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बिकॉज आई डू बिजनेस कंसल्टिंग फॉर वेरी बिग ब्रांड्स. तो हम उनको टोटली प्रोसेस समझा सकते हैं कि कैसे आगे स्टार्ट करना चाहिए. तो स्टार्टिंग से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके पार्टनरशिप अगर वो चाहते हैं या फिर गाइडेंस चाहते हैं, सब कुछ उनको पीबीएन ज्वाइन करके वहां पे अपना पॉइंट रख सकते हैं. आप अपना प्रस्ताव भी, आपका जो प्रपोजल है, आप पीबीएन प्लेटफॉर्म को यूज करके इसमें आप इसके द्वारा कुछ पार्टनर्स भी आप इसमें सर्च के लिए डाल सकते हैं. आप अपना बिजनेस प्रपोजल्स भी पीबीएन के ग्रुप में टेलीग्राम में डालिए और उससे आपको लाइकली पार्टनर्स या फाइनेंशियर्स जो आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करेंगे वो मिल जाएंगे आपको. और नए प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ही एक वरदान है. जो नया प्रैक्टिस स्टार्ट करता है प्रोफेशनल, उसे मार्केटिंग और अपने आप को अवेलेबिलिटी बताने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे समाज में अपनी अवेलेबिलिटी बताने के लिए और उसका प्रेजेंस बताने के लिए, उसकी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बताने के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है. मैं यंगस्टर्स, सभी प्रोफेशनल्स और जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने ब्लॉग्स डालिए, थोड़े से इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए पीबीएन में. उसके नीचे आप अपना परिचय भी दीजिए जो ब्लॉगिंग के अगेंस्ट. खाली फॉरवर्ड मत कीजिए, उस पे वर्क करके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डाल के नीचे आपका फर्म का नाम और आपका परिचय और आपका मेल आईडी वगैरह दीजिए. ठीक है, ये एक तरीके से आप अपने प्रोफेशनल्स जो है, क्योंकि प्रोफेशनल्स को उनके प्रोफेशंस के इंस्टीट्यूट्स के द्वारा एडवर्टाइजिंग की मनाही होती है. Good afternoon, everyone. Hello, Kushal. Hello, Uncle. Uncle, my question is how to mitigate the competition amongst the members. As in, if I'm into some X business, there is a possibility that some other member will also be in the same business. So, अगर कुछ requirement आएगा business का, तो clash हो जाएगा ना members के बीच में. How to mitigate that competition? Alok, will you take up? Yeah. I think as of now, how we have looked at the platform is we are taking up the members based on how they are joining. But yes, once we have competing professionals coming on the platform, what we plan to do in the next phase is that we'll try to have maybe like we have in other groups, we have chapters where we can divide them into chapters based on competing professionals so that they don't compete. But for the time being, yes, definitely, because there are competing professionals, I think we'll have to look for the best solution out of the ones which are available to us. So let the buyer decide what is best for him and take a decision as of now. But yes, there is a plan going forward that we'd like to segregate
based on professionals, based on businesses, so there's no competition. हम लोग इसी तरीके के frequently इंट्रोडक्शन राउंड्स के वेबिनार्स भी करने का प्लान्स है, जिसमें हम एक दूसरे के सदस्यों को जो भी इससे जुड़ेंगे वो अपना प्रेजेंटेशन भी 30 सेकंड का बना के लाएंगे, उनको हम गाइड करेंगे, वो अपना प्रेजेंटेशन 30 सेकंड का अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, वो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच हो सकता है। हम लोग जिस वो वेबिनार की स्ट्रेंथ को देखते हुए उस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे मेंबर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज वेबिनार के थ्रू भी कर पाए। और हमारी वेबसाइट जो डेवलप हो रही है उसमें भी आप अपने वीडियो खींच के अगर हमको फॉरवर्ड करेंगे तो हम वो वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पे भी उसको अपलोड कर दिया जाएगा, जिससे मेंबर्स को पूरा हर तरीके से उसके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। As Ankita has said already, I'm doing lot of advertisement on the social media, on the FB and everything. But still, I would like to tell her to suggest me more tips regarding how to improve it more. Like, हेलो मीना जी, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको पर्सनल में डेफिनेटली समझा सकती हूँ। तो आप इस पीबीएन की इस वेबिनार के बाद आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो and we can discuss this further there. I'd like to now invite Dr. Neha Agarwal to propose a vote of thanks. Hello friends, a very good afternoon to all the participants who have joined us today for this webinar. It is my privilege to propose a vote of thanks on this occasion. We are elated at the response that we have received, not only for PBN but also for our debut webinar. First, thank you to Agarwal Samaj Hyderabad Shakha. The Shakha has helped find its feet, and for this we cannot thank them enough. I would also like to mention and give kudos to all the steering members who have been able to make effective use of this sudden and unexpected lockdown. The idea of PBN, which till now was merely on paper, was given its formal shape and structure during this very short time by its very committed and dedicated steering committee members. Thank you, Manojji, for the very warm welcome that we extended to all the participants. I appreciate the efforts of CA Alok Agarwal and Pawan Kumar, who were the host of today's webinar. It was because of their effort that the entire session was so very well organized and went on very smoothly in their capable hands. I'm very grateful to Prashant Agarwal and Ankita Gupta for the very relevant topics that they have taken, and I hope all the members will benefit from it. Before parting, I would also like to mention all the steering committee members, Mahesh Kanodia ji, Ritesh Agarwal ji, Niranjan Lal Pitti ji, Sumesh Bansal, Reena Agarwal, Dr. Swati Agarwal, Divyansh Agarwal, and Uday Gupta ji. They are highly motivated individuals who have really pushed all the other members and given PBN its shape. I, on behalf of the entire steering committee, want to thank all the participants present here for being a part of the very first step in our long and momentous journey. We thank you for being with us. It has been a great pleasure. Thank you very much. एक लास्ट अपडेट आप सभी के लिए देना चाहेंगे। वो लोग जिन्होंने गूगल फॉर्म के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी स्लाइड या जो भी डिटेल्स है हमारे मेंबर्स के, उनको पर्सनली उनको मेल पे और उनके व्हाट्सएप विंडो पे भी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट दोज हु डिडंट रजिस्टर्ड थ्रू गूगल फॉर्म, प्लीज रजिस्टर कीजिए सो दैट जो भी पीबीएन से रिगार्डिंग डिटेल्स हैं वो आपके व्हाट्सएप और मेल पे भेजा जा सके। थैंक यू। Thanks everybody for joining us on this session. So PBN और उसकी टीम के बिहाफ पे मैं आलोक और मेरे साथ पवन अग्रवाल would like to sign off. Thank you for joining us. Have a great day. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you.